Good morning, sweet students. Good morning. Please wave your hand in case I am Good clear. morning, sir. बच्चे 8th A class. Yes. Now 8th A is also visible to me. Good morning. Good morning. Very nice. जब मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है. Smiling faces, energetic, very nice. बेटे 8th C के बच्चे जल्दी सेटल हो जाएंगे. शाबाश 8th C के बच्चे. Other students, please open your notebooks and assignments. Be ready with your pen, notebooks, assignments on your table. Okay? So what I observed, 8C is not yet settled. Okay. Now all students are settled. We will proceed without any delay. Look here. But what is shown on the board? What is shown on the board? This is the device. Look here. This is the device whose name is written. Sir, it's kaleidoscope. Very nice, bete. Well, bete, all of you are very much correct. The name of the device is very much written here, kaleidoscope. Now question arises, on what principle it works? What is its principle of working? Sir, we have made this device. Oh, very good. If you have made this device in your homes, in your laboratory, that is really praiseworthy. All bravo to you and your teacher also. Look here, but principle of working is based on what? Multiple images. Multiple images seen in inclined mirrors. Inclined mirrors. This is the principle. Okay. Last time we discussed, if there are two mirrors such that M1 mirror and M2 mirror are facing each other and their angle of inclination is theta, right? Then number of complete images of the object which is placed in between, that is given by 360 divided by given value of the theta. Theta will be given to you, and after solving this division you have to subtract -1. ओके बेटे, अब हमारा क्लैडियोस्कोप में क्या है? कोई बच्चा बताएगा क्लैडियोस्कोप में टोटल कितने इंक्लाइंड मिरर्स होते हैं? How many mirrors? 3. Very good. So you all say, sir, 3 mirrors. Every student knows. Can anybody tell me what is the angle between any two mirrors? Angle? 60. Yes, because all the mirrors are of equal size. Therefore, all the three sides of the triangle are equal. When sides lengths are equal, let me tell you, when all the sides are equal, then angles are also equal.
Okay, let's call each angle as phi, and let me tell you, angle phi is equal to 60 degree if triangle is equilateral. What is meaning of equilateral triangle? The triangle whose each side is same. Each side is same. That is why teacher has mentioned each side is equal to small a. I have clearly mentioned small a, small a, small a is equal to length of the triangle. One more thing. Suppose we talk about any two mirrors, then in this case angle phi, ये जो लेटर होता है इसको phi बोलते हैं, phi. Angle phi is naturally 60 degree. So how many number of images between any two mirrors? Every student will say, sir, you will apply this formula. 360 divided by 60 minus 1. So number of images 6 minus 1, that comes out to be 5. But this is about these two mirrors. Similarly, these two mirrors are also inclined at 60 degree. These two mirrors are also inclined at 60 degree. So जब भी आप इस क्लैडियोस्कोप में कुछ भी कलर्ड ऑब्जेक्ट डालते हो, लाइक ब्रोकन पीसीज ऑफ बैंगल्स, ब्रोकन पीसीज ऑफ बैंगल्स, लेडीज पहनती है ना बैंगल्स, मैरिजेस वगैरह के मौके पे आपने देखा होगा, दे आर यूजली मल्टी कलर्ड. तो एक बैंगल का टुकड़ा वो अंदर थ्रो करेंगे, उसके मल्टीपल इमेजेस बन जाएंगे और बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बनते हैं. अगली बार हम इसको शेक करके फिर से देखेंगे तो वो बैंगल के पीसेस किसी और फैशन में डिजाइन होते हैं, फिर उसके मल्टीपल इमेजेस भी बनते हैं. ये देखो ये स्टूडेंट कितना बढ़िया एंजॉय कर रहा है. वो इस क्लैडियोस्कोप को रोटेट कर करके देखता है, एवरी टाइम ही ऑब्जर्व्स दी डिफरेंट डिजाइन. जानते हो इसका फायदा क्या है? जो हमारे रॉयल पैलेसेस होते हैं, जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं, ओके, तो उनका जो फ्लोर बनता है, फ्लोर, तो उसका फ्लोर का डिजाइन जो मार्बल से बनाते हैं वो यहां से पिक्चर ले लेते हैं. पहले ऐसे इसको रोटेट करते हैं, एक पर्टिकुलर डिजाइन बना, वो ऑनर को दिखाते हैं, सर ये बढ़िया है, वो कहते हैं यस बढ़िया. तो क्लैडियोस्कोप के ऊपर कैमरा रखते हैं, कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं और वो पर्टिकुलर डिजाइन कंप्यूटर वाले को देते हैं. कंप्यूटर वाला उसका प्रिंट आउट दे देता है और फिर वो घर में काम करने वाला जो मीजन्स होते हैं, जो मार्बल लगाते हैं, जो ग्रेनाइट लगाते हैं, उनको देते हैं कि ऐसा हमें डिजाइन फ्लोर पे बना के दो, या ऐसा पर्टिकुलर डिजाइन दीवार पे बना के दो. तो इट मीन्स दिस डिवाइस इज वेरी यूजफुल फॉर मीजन्स. जो हमारे मिस्त्री लोग होते हैं, ग्रेनाइट मार्बल वगैरह फिक्स करते हैं, घर बनाते हैं, मीजन्स के लिए हाईली हाईली यूजफुल. तो कभी कभी आपसे पेपर में पूछता है क्लैडियोस्कोप का प्रैक्टिकल लाइफ में बिगेस्ट बेनिफिट क्या है, तो आपने ये नहीं बोलना बच्चों के खेलने की चीज है जी, उनको बड़ा अच्छा लगता है. आपने बोलना है हाईली यूजफुल फॉर द मीजन्स. They can design beautiful floor designs with the help of granite and marble and colored tiles, floor tiles और wall tiles. Okay? जिन बच्चों को ये समझ आ गया अच्छे से, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड. 8th C, 8th C बेटे, 8th C. ओके, गुड जॉब. अब देखना चाहता हूं कौन से बच्चे का इंग्लिश अच्छा है. Who can tell me while coming on the mic, if I ask you what is the use of kaleidoscope in practical life? Anybody who can come on the mic and answer in English? What is the use of kaleidoscope in practical life? अभी अभी टीचर ने बताया था आपको. So what I am observing, nobody is daring enough in section A. 8th A में एक भी डेयरिंग बच्चा नहीं है जो माइक पर आके इंग्लिश में इसको बोल सके. 8th B में anybody raise your hand if you feel confident that I can make the English and tell you the practical usage of kaleidoscope in life. 8th B, one student is coming, very good.
बोलो बेटे, व्हाट इज योर गुड नेम? Kaleidoscope is useful for missions. For To, how it is useful for measles? for making the designs of floor. Floors as well as tiles. Okay. So which materials they can use? They can use the marbles, granite, tiles, plastic pieces, etc. Right? Very good. What is your good name, bete? What is your good name? Sir Navya. सारे स्कूल में एक ही बच्चा डे, वेरी गुड, शाबाश। नव्या करके 8th बी का नव्या बच्चा था जिसने सारे स्कूल को डिफीट कर दिया। फुल ब्रेवो, ब्रेवो टू नव्या, शाबाश, दिल खुश कर दिया मेरे को, मेरा आप बच्चे, वरना मेरे को बड़ा गलत लगता कि स्कूल में एक भी बच्चा। ब्रेवो टू नव्या, वेरी गुड, ओनली वन स्टूडेंट। सो बच्चे, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर क्या है हमारे लिए। वेट ए मिनट, हैंग हो गया बेटे। नेक्स्ट फोटो हैंग हो गया। वेट ए मिनट बेटे, बोर्ड हमारा आ गया। नेक्स्ट फोटो, सभी बच्चे इतने अपनी असाइनमेंट में, व्हाट इज प्लेस्ड हियर? नेल पॉलिश, nail polish is placed. How many images are seen, will be seen? So naturally you will say, sir, 360 degree divided by theta minus 1, number of complete images. So your answer should be 360 divided by 90 minus 1, or minus 1, 3 images you will say. Okay, याद रहे 3 images। आप उसमें ऑब्जेक्ट को काउंट नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट को काउंट नहीं करोगे। ये इमेजेस हैं, इस फोटो में 2 ही दिखा रखे हैं, आपको एक और भी दिखना चाहिए, ज्यादा अच्छा नहीं है ये फोटो, राइट? तो इस तरह से हमारे पास ये प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है, राइट? नेक्स्ट, हटा, पहले लिखा हुआ हटा। ये तो हो गया क्लेडियोस्कोप। नेक्स्ट इज व्हाट? बस एक पेरिस्कोप होएगा अभी। ये देखो बेटे, पेरिस्कोप आ गया। पेरिस्कोप को टीचर एक्सप्लेन करने लगे हैं, प्लीज बी अटेंटिव। हमारे पास एक और डिवाइस है बड़ा अच्छा, पेरिस्कोप। दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड मिरर्स। इंक्लाइंड मिरर्स, ध्यान से सुनना बेटे, मेरी बात बड़े अच्छे से सुनना। मान लीजिए हमारी एनिमी कंट्री के साथ वार हो गया। सपोज करो इधर चाइना के सोल्जर्स हैं और इधर भारत के सोल्जर्स हैं, तो क्या होता है, हमारे सोल्जर्स ये चाहते हैं कि वी शुड बी एबल टू सी दी चाइनीज सोल्जर, चाइनीज सोल्जर्स को हम शूट कर सके। लेकिन भारत के सोल्जर्स ये चाहते हैं कि हम जब इधर बैठेंगे तो चाइना के सोल्जर्स हमें मत देख सके, तो हमें देख ही ना सके।
तो क्या करते हैं इंडियन सोल्जर्स, वो इंडियन सोल्जर्स अपने आप को एक पिट में छुपा लेते हैं, पिट में। जब ये पिट में छुपा लेते हैं तो आप कहोगे सर जब ये इस पिट में छुप गए हैं तो इनको भी चाइनीज सोल्जर्स कैसे दिखाई देंगे? लेट मी टेल यू, जब ये पिट में बैठते हैं तो वहां पर एक डिवाइस लेकर जाते हैं साथ में, पेरिस्कोप। देखो ध्यान से, यहां पर हमारा सोल्जर्स बैठा है, ओके, और इस सोल्जर को इस पाइप में से देखना होता है, और ये पाइप का हिस्सा पिट से बाहर होता है, और ये सोल्जर अंदर है। ये वाला किनारा यहाँ पर है और ये वाला किनारा पिट से बाहर है, जस्ट लाइक दिस, राइट। इसी इंस्ट्रूमेंट को लिटाकर दिखाया हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूं ये काम कैसे करता है। सभी बच्चे देखें इधर, इस चीज को मैं अपने बच्चों को बड़े ध्यान से समझा रहा हूं, योर अटेंशन। उनके पास ये एक पाइप है और यहां से परपेंडिकुलरली एक पाइप लिया, यहां से परपेंडिकुलरली एक पाइप लिया। हमारे सोल्जर्स का फेस यहां पर होगा, वो इसके अंदर देखेगा। लेकिन हम इस पेरिस्कोप में करेंगे क्या? व्हाट विल वी डू? वी विल फिट दी वन मिरर हियर such that this angle is 90 degree, this angle is 45 degree, this angle is also 45 degree, and you see all the sum of the all angles is 180 degree. Similarly हम एक मिरर यहां लगाएंगे, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे लगा दिया बेटे। बोथ शाइनिंग फेसिस ईच अदर। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो क्या होगा। इधर देखना सभी बच्चे, यहां पर एनिमी सोल्जर्स खड़ा हुआ है, एनिमी सोल्जर। लेट मी यूज द अदर कलर फॉर बेटर विजिबिलिटी, ये यूज कर लेते हैं। यहां पर एनिमी सोल्जर्स खड़ा हुआ है, एनिमी सोल्जर्स के हेड से ये लाइट गई और इसके पैरों से भी ये लाइट गई, मिरर से टकराई। सो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट यहां आई दूसरे मिरर की तरफ। कोई बच्चा सोचता है सर सोल्जर की बॉडी से लाइट कैसे आ सकती है, वो तो कोई बल्ब थोड़ी है, वो तो इंसान है। लेट मी टेल यू, जो यहाँ पर सन है ना, सूरज, सन, उसकी लाइट एनिमी सोल्जर्स पर पड़ती है और एनिमी सोल्जर की बॉडी से टकराकर ये लाइट का कुछ पोर्शन मिरर की तरफ जाता है, और मिरर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करते हुए लाइट इधर आई, और ये भी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करते हुए लाइट इधर आई इस मिरर पर। और गौर से देखो, अब फिर से देखना, इस यहां पर क्या होगा बेटे, व्हाट विल हैपन, ये वाली लाइट देखते हैं जो इसके एनिमी सोल्जर के पैरों से चलती है। फ्रॉम द फुट ऑफ द एनिमी सोल्जर लाइट इज गोइंग, गेटिंग रिफ्लेक्टेड, कमिंग डाउनवर्ड, इट अगेन गेट्स रिफ्लेक्टेड टू दिस साइड, और हमारे भारत के सोल्जर्स की आंखों में एंटर करेगी, ठीक है। सिमिलरली आप ये देखो, दूसरी रे ऑफ लाइट को क्या होगा, जो हेड से चली है, हेड से चली, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल करते हुए यहां आई, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करते हुए इधर चलेगी, हमारे सोल्जर की आंखों में चलेगी। तो हमारे सोल्जर को एनिमी का सोल्जर दिखाई देगा, पर क्योंकि हमारा खुद का सोल्जर एक पिट में छुपा हुआ है तो हमारा सोल्जर चाइना के सोल्जर को नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारा सोल्जर यहाँ पिट से थोड़ी सी मशीन गन बाहर निकालेगा और चाइनीज सोल्जर को शूट कर देगा और हम जीत जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर ये मिरर ऐसे रखा हुआ है और ये लाइट इस सोल्जर के हेड से ऐसे टकराती है, तो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लाइट नीचे को जाती है, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज वाई लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट, ये टीचर ने यहाँ पर दिखाया। ये गई इंसिडेंट लाइट, ये वाला नॉर्मल है लाइन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल करते हुए लाइट इधर को आ जाएगी, और यहाँ पर फिर से वही चीज हो जाएगी। फिर से यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आएगी, और लाइट हमारी
सोल्जर्स की आईज में एंटर करेगी। गॉट इट? तो ये एक रिफ्लेक्शन बेस्ड है, राइट? तो पुलिस भी कभी कभी चोरों को ऐसे पकड़ लेती है, उनको पता लगता है इस घर में चोर बैठे हैं और अंदर बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पुलिस की पॉकेट में भी ये होता है, धीरे धीरे जाते हैं दीवार के ऊपर से ऐसे लगा लेते हैं, इसका ये वाला हिस्सा दीवार के ऊपर से। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर होता है, उसको साफ पता लगता है अंदर चोर क्या कर रहे हैं। इस वक्त वो ये वाला चोर चाकू रख रहा है, ये वाला चोर पिस्टल रख रहा है, सो दे आर प्लानिंग फॉर सम इलीगल एक्टिविटी। They immediately nab the miscreants and put them into imprisonment, जेल में डाल देते हैं, और इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करते हैं अपने शहर में। जिन बच्चों को ये समझ आ गया पेरिस्कोप, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, गिव द फीडबैक। वेरी गुड। कोई बच्चा बोलता है सर मैं इसको प्रैक्टिकली बना सकता हूँ, बिल्कुल। आप एक पाइप ले लो और इसको ऐसे जेड शेप में बना लो, एक मिनट यहाँ लगा दो, एक मिनट यहाँ लगा दो, उसके बाद ये बन जाएगा आपका। लेकिन ख्याल क्या रखना है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, इस चीज का ख्याल रखना है, तभी ये काम करेगा। इसका और क्या प्रैक्टिकल यूजेज हो सकता है पता है? और सुनो इसका प्रैक्टिकल यूजेज, ध्यान से सुनना। इसका एक प्रैक्टिकल यूज हो सकता है, मैं अपनी कार में जाते हुए वाइल सिटिंग इन द ड्राइवर सीट, मैं बैक साइड पर कार को देख सकता हूं कौन सी आ रही है, बैक साइड पर। तो उसमें हम ये वाला जो फेस इधर को है ना, जेड वाला, इसको इधर को घुमा लेते हैं, इधर को, तो इसको यू शेप पेरिस्कोप बना लेते हैं, यू शेप, देखो ऐसे। गॉट इट? तो एक प्लेन मिरर यहां लगा देते हैं, एक यहां लगा देते हैं, तो यहां पर कार का ड्राइवर देख रहा है और ये वाला हिस्सा कार से बाहर है, और जो पीछे कार आ रही है हमारी, उसका फोटो आएगा इस मिरर में, इस मिरर से इस मिरर में आएगा, इस मिरर से कार के ड्राइवर में आएगा, आंखों में आएगा। इसका मतलब जो पीछे आ रही है, हमारी कार के पीछे आ रही है, बैक साइड से कार, उसमें हम उसका क्लियर कट इमेज देख सकते हैं। जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स होते हैं जर्मनी के और जापान के, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, जैसे जैगुआर कार्स, उसमें ये लगा होता है बेटे। पेरिस्कोप के थ्रू वो बैक साइड पर आ रही कारों का क्लियर इमेज देखते हैं, क्लियर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज यूजफुल फॉर द हाई ब्रांड, हाई एंड ऑटोमोबाइल्स आल्सो। तो ये थे प्रैक्टिकल यूजेज, क्या क्या बताया टीचर ने। पुलिस के काम आ सकती है, आर्मी के काम आ सकती है, सोल्जर्स, नेवी के काम आ सकती है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम आ सकती है। फिर से सुनो, ऑटोमोबाइल, आर्मी, पुलिस, नेवी। तो देखो अल्फाबेटिकली लिखे हैं, समझदार बच्चा इनको याद कर लेगा। AAPN, जिसको ये याद रह गया AAPN, वो लिख देगा पेपर में, एंड ही विल गेट द गुड मार्क्स। ठीक है? इस तरह से मेरे बच्चों को पेरिस्कोप बनाना आ सकता। ये देखो नेवी वाले भी देखते हैं, ये देखो ओशन के अंदर से, उनका यहाँ पर पानी के अंदर सबमेराइन होती है, सबमेराइन पनडुब्बी, जो पानी के अंदर छुप छुप के चल सकती है, तो उन्होंने सबमेराइन से बाहर को निकाल रखा है। ये देखो ये वाली चीज जानते हो क्या है? बिल्कुल यही चीज, ये वाला हिस्सा उन्होंने बाहर निकाल रखा है। तो यहाँ पर एनिमी, जो एनिमी की नेवी है, उसकी एक्टिविटीज हमें अंदर सबमेराइन में पता लग जाएगी, और हम पानी के अंदर से ही बॉम्ब थ्रो कर सकते हैं। किसके ऊपर? एनिमी आर्मी बटालियन के ऊपर। और इस तरह से हम अपने देश के जो बॉर्डर्स हैं उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। जो भी हमारी कंट्री का बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर से 20 किलोमीटर तक जो समंदर होता है, 20 किलोमीटर तक, वो हमारा होता है। जैसे भारत की बाउंड्री है, उसके 20 किलोमीटर तक हमारा हक है, उसमें दूसरी कंट्री के शिप बिना परमिशन के नहीं एंटर कर सकते। ओके? अगर करेंगे तो हमने ये डिवाइसेस लगा रखी हैं, पहले तो हम उसको वार्निंग देंगे फिशर्स को कि आप गलती से तो नहीं आ गए, अगर आ गए तो अपने आप को बचा लो।
अगर उन्होंने हमारी वार्निंग का इग्नोर करा तो हम अपनी नेवी को ऑर्डर देंगे, शूट देम। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमसे पूछ नहीं सकती कि आपने ये सोल्जर्स को, ये फिशरमैन को क्यों मार दिया। तो हम कहेंगे 20 किलोमीटर हमारा दायरा था, ये पाकिस्तान के फिशरमैन हमारे दायरे में आए क्यों। और अगर ये अनपढ़ भी थे, ये इलिटरेट भी थे, तो हमने इनको वार्निंग दी थी माइक के थ्रू, वॉकी टॉकी के थ्रू, फिर भी इन्होंने हमारी वार्निंग को इग्नोर करा। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, एंड आफ्टर दे इग्नोर्ड अवर वार्निंग वी हैव शूटेड देम। गॉट इट। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे बच्चों को इनका यूजेज पता लगा, राइट। अब आ जाओ असाइनमेंट पे वापस। Sir, can we use this device in night time? इन वेयर बेटे? In night time. नाइट टाइम। देखो बेटे, अगर योर अटेंशन, ये जो इंक्लाइंड मिरर्स है ना, इंक्लाइंड मिरर्स, इसके साथ हमें एक डिवाइस यूज करनी पड़ती है जो रात को आ रही वेव्स को भी डिटेक्ट कर लेती है, इंफ्रारेड रेज को भी डिटेक्ट कर लेती है, इंफ्रारेड रेज। ओके, तब हमें नाइट विजन का जैसे कॉन्सेप्ट होता है, उसमें इंफ्रारेड रेज का रोल होता है, वो रात को हमें दिख जाती हैं। लेकिन उसके लिए सोफिस्टिकेटेड एक और डिवाइस में लगानी पड़ेगी, इंफ्रारेज डिटेक्टर। अगर आप ये चाहते हो आपकी क्लास में सबसे बढ़िया पेरिस्कोप बने, तो मैं एक और मेथड बताता हूं आपको। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिरर, आप इसकी जगह प्रिज्म यूज करो। प्रिज्म, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रिज्म यहां यूज चिपका दो और एक यहां चिपका दो, फिर तो इतना अल्ट्रा क्लियर इमेज आएगा ना, आपको मजा आ जाएगा देख के, और आप उसको सालों साल संभाल के रखोगे। बड़े भी हो जाओगे तो आप उसको एज ए सिंबल ऑफ अचीवमेंट रखोगे, यार मैंने ये 10th क्लास में बनाया था या 8th में बनाया था। गॉट इट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिज्म मिरर, आप उसकी जगह प्रिज्म यूज करो। प्रिज्म, देखो ये प्रिज्म का किनारा हो गया और ये वाला प्रिज्म का एज हो गया। ट्रायंगुलर प्रिज्म, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म मिल जाता है मार्केट में, लगभग 70 रुपीज का, ये भी 70 का, और ये पाइप का खर्चा हो जाएगा लगभग आपका यू कैन से 50 रुपए। ओके, तो मैक्सिमम अप टू 200 रुपीज आप ये बना सकते। गॉट इट। लेट्स प्रोसीड फॉर नाउ क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटे 17, why mirrors are preferred over curved mirror in the periscope? कर्व्ड मिरर नहीं लगाते, प्लेन मिरर लगाते हैं। प्लेन मिरर लगाते हैं, कहता हूं उसकी जगह गुलाई वाला मिरर क्यों नहीं लगाते, यहाँ पर प्लेन मिरर क्यों लगाते हैं। तो हम कहेंगे, ध्यान से सुनना बेटे, अगर गुलाई वाला मिरर लगाएंगे, कर्व्ड मिरर, तो जो आर्मी सोल्जर से रे ऑफ लाइट आ रही है वो यहां से टकरा के वर्टिकली नीचे जाएगी नहीं, वो तो कर्व्ड मिरर में यहां टकरा के वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके वो इधर को चली जाएगी कहीं पर। सो हमें तो यहां से टकरा के हॉरिजॉन्टल रेज ऑफ लाइट को वर्टिकली लेके जाना है। दैट इज पॉसिबल ओनली इफ वी यूज द प्लेन मिरर्स, नॉट द कर्व्ड मिरर्स। ओके, तो ये था आपका 17th क्वेश्चन। और प्लेन मिरर अनडिस्टॉर्टेड इमेजेस हो गए। अच्छा, इसमें हम बी लिख देना इसमें। 18th क्वेश्चन, हाउ इज पेरिस्कोप यूजफुल इन सबमरीन एंड टैंक्स। तो ये मैंने आपको बता दिया। 18th क्वेश्चन, सबमरीन और टैंक्स में ये कैसे यूजफुल हो सकता है। इट अलाउज द क्रू टू सी द ऑब्जेक्ट्स अबव द सी लेवल, है ना, अबव, एंड व्हाइल स्टेइंग हिडन। तो 18th का बी सेक्शन आप लगा सकते हो कि अपने आप को सबमरीन में डुबाते छुपा कर रखते हुए, सबमरीन पानी में डूबी हुई एक छोटा सा शिप टाइप होता है जो पानी के अंदर अंदर छुप के चलता है। तो while sitting in the submarine we can see the soldiers of the enemy navy and can defeat them. Okay, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते। चलो निकलो, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया।
जिनको अच्छे से समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज 8th सी देता ही नहीं जवाब। ओके, तो अब हम नॉर्मल बोर्ड पे चलते हैं और वहां मैं आपको कुछ बताता हूँ। नॉर्मल बोर्ड पे नॉर्मल बोर्ड पे ये लो क्या क्वेश्चन नंबर 19 बेटे क्या कह रहा है? assertion and reason. Let's read it. Using transparent plastic instead of glass mirrors will reduce the image clarity. बिल्कुल सही। जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है ना बेटे, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, उसकी ट्रांसपेरेंसी लेसर होती है। क्या चीज? पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी इज लेसर इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। अगर ये कांच होता तो ट्रांसपेरेंसी बेटर होती। गॉट इट? तो ए ऑप्शन सही कह रहा है 19 का। यूजिंग ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ ग्लास मिरर विल रिड्यूस द इमेज क्लैरिटी। बिल्कुल, इमेज थोड़ा बहुत धुंधला दिखने लगेगा। इसका रीजन, ग्लास मिरर प्रोवाइड बेटर रेगुलर रिफ्लेक्शन देन प्लास्टिक। ग्लास मिरर प्रोवाइड बेटर रेगुलर रिफ्लेक्शन देन प्लास्टिक। ठीक है, दोनों असर्शन सही है बेटे और रीजन भी सही है। ठीक है, और अब ये बोलता है कि क्या ये इसका करेक्ट रीजन भी है ना। ये रिफ्लेक्शन वाली बात अलग है, ट्रांसपेरेंसी वाली बात अलग है। तो assertion is correct as a learning point, reason is correct as a learning point, but reason is not providing the logical explanation to assertion। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये अपने आप में दो डिफरेंट लर्निंग पॉइंट्स ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बेटे, assertion, reason, correct explanation देखते हैं कि नहीं। A periscope allows a person to see over obstacle without being directly exposed। बिल्कुल सही। हमारे सोल्जर्स ने खुद को पिट में छुपाकर एनिमी की आर्मी सोल्जर्स देख लिए थे, इसलिए असर्शन सही लिख रहा है। सेकंड, periscope uses two plane mirrors placed parallel to each other are reflecting light by the laws of reflection। बिल्कुल सही। जब हम पेरिस्कोप को याद करेंगे तो उसका फोटो ऐसे था बेटे। तो एक मिरर ऐसे लगा हुआ था, एक मिरर ऐसे लगा हुआ था। ये देखो दोनों मिरर, ये वाला मिरर और ये वाला मिरर, दोनों आपस में पैरेलल हैं। और यही वो कह रहा है, रीजन में दोनों पैरेलल है। एंड टीचर ने आपको सिखाया भी था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर फिर से नॉर्मल ड्रा करा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के लॉज भी लगते हैं, रीजन भी सही है। अब नीचे क्या कह रहा है? यस यस, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये वाला असाइनमेंट कवर हुआ। अब हम दूसरे असाइनमेंट पे चलते हैं। शाबाश, सेकंड असाइनमेंट, पुल इट आउट। इसमें मैं अपने बच्चों को क्वेश्चन करवाता करवाता, बेस बनाता बनाता आगे बढ़ूंगा। सभी बच्चे ध्यान से देखें। प्लीज रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूं पहले, योर अटेंशन। बेटे, एक तरफ रेयरर मीडियम होता है, एक तरफ डेंसर मीडियम होता है। दोनों के दोनों मीडियम ऑप्टिकल मीडियम होने चाहिए। कोई बच्चा बोलता है सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल मीडियम? दोनों के दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट। सर एग्जांपल दे सकते हो?
बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे यहां पर हो वाटर, जैसे यहां पर हो ग्लास। सर आप ये बता सकते हो वाटर को आपने रेयर मीडियम क्यों बोला और ग्लास को डेंसर क्यों बोला? कोई बच्चा बोलता है सर क्योंकि वाटर की डेंसिटी डेंसिटी वाटर की लेसर होती है ग्लास के मुकाबले। कोई बच्चा अगर ऐसे जवाब दे दे इसका, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं होता। ये डेंसिटी का वही फार्मूला है जो आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इस फार्मूले का रेयर और डेंसर मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। रेयर मीडियम क्या होता है, ध्यान से सुना। रेयर मीडियम वो होता है बेटे जिसमें वेलोसिटी की लाइट की वेलोसिटी रेयर मीडियम में ज्यादा होती है और लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में कम होती है। तो यही डेफिनेशन है। आउट ऑफ द टू मीडियम, द मीडियम वेयर द लाइट वेलोसिटी इज हायर इज कॉल्ड रेयर मीडियम, वेयर द लाइट वेलोसिटी इज रेयर लेसर दैट इज डेंसर मीडियम। लेकिन ये डेंसिटी वर्ड का कोई लेना देना नहीं है रेयर और डेंसर में। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, इवन टीचर्स को भी। कोई लेना देना नहीं है इस बात का, ये स्पीड से डिसाइड होता है ऑप्टिकल मीडियम। ओके, दूसरा लर्निंग पॉइंट, सेकंड लर्निंग पॉइंट बेटे, जब इस मीडियम में रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आएगी, जब इस रेयर से डेंसर में, रेयर टू डेंसर, तो यहां पर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो असली रास्ता छोड़ देती है, ये इधर को हो जाएगी। जिन बच्चों को ये रेड कलर की विजिबिलिटी अच्छी कम दिखती है, मैं फिर से बताता हूँ। देखो मैंने ये व्हाइट लाइन लिया और इसके एक तरफ रेयर मीडियम है, एक तरफ डेंसर मीडियम है। जो ये मीडियम को सेपरेट करती हुई लाइन होती है, इसका भी स्पेशल नाम होता है। इसका नाम ये होता है रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज, इसको ऐसे नहीं बोलना सेपरेटिंग लेयर या डिमार्केशन लेयर ना, सब गलत। रिफ्रैक्टिंग एज सेपरेट्स रेयर एंड डेंसर मीडियम। अब मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है P और मैंने रेयर मीडियम से डेंसर में लाइट थ्रो करा ऐसे। अगर ये दोनों मीडियम सेम होते, ऊपर भी पानी होता नीचे भी होता पानी, तब ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी निकल गई होती, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होती। लेकिन जब ये अलग अलग है, गौर से देखो, रेयर मीडियम डेंसर, तो हम यहां पर नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल, नॉर्मल कौन सा होता है, जो रिफ्रैक्टिंग एज के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए, नॉर्मल भी बोल देते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। ये होगी इंसिडेंट रे। ओके, जब भी नॉर्मल, जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। ये ऐसे चले जाएगी जैसे टीचर ने ग्रीन कलर वाली लाइन दिखाई है। ये देखो डॉटेड पोजीशन से इधर को मुड़गी, इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब बहुत से बच्चों को लगता होगा कि सर ये तो मेरे को आता है। जिन बच्चों को लगता है कि ये उसको आता है तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। कौन बच्चा इस एंगल का नाम बताएगा, इस एंगल का? एनीबॉडी? तीनों क्लासों में एक भी बच्चा बता दो इस एंगल का नाम क्या है? Angle of incidence ray. रॉन्ग, इट इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस। Angle of glass. यस यस, ये जो रिफ्रैक्टिंग एज के साथ बनता है इसको एंगल ऑफ ग्लास बोलते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वो होता है जिसको टीचर ने रेड कलर से दिखाया। इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा पॉइंट, कौन बच्चा मेरे को इस एंगल का नाम बताएगा, ट्रिपल लाइन वाले एंगल का? एक भी बच्चा पूरे स्कूल में? एक बच्चा 10th 8th A में, एक गुड़िया का हाथ खड़ा है, प्लीज कम ऑन द माइक एंड टेल।
एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है बेटे आपका? जोवन। मैं बताना चाहूंगा, आज एक बच्चे ने आपके स्कूल में 8th बी का बच्चा है यौवन, उसके लिए मेरी तरफ से स्पेशल शाबाश। एक बच्चे ने बताया पूरे स्कूल में, वेरी गुड। इसको इसने बोला सर इसको डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा से। इसका नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन। और एक एंगल टीचर आपके बोर्ड के ऊपर व्हाइट कलर से शो कर रहे हैं, डबल लाइन वाला, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल। तो गौर से देखो टीचर ने कितने सारे एंगल लिख दिए रिफ्रैक्शन में। ये सब कब है? जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है। दिस इज वन टाइप ऑफ द रिफ्रैक्शन। और अगर मैं उल्टा फेंक दूं, डेंसर टू रेयरर फेंकूं, कांच से पानी की तरफ फेंकूं, तो वो अलग टाइप होगी। लेकिन पहले इसमें चलते हैं। इसमें क्या क्या सीखा हमने, ध्यान से सुनो। मैं स्पेस बनाता हूं। जब लाइट रेयरर से डेंसर में आई, जैसे कि पानी से कांच में गई, तब हमने क्या क्या सीखा? सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना, क्या क्या सीखा। नंबर 1, बहुत सारे पॉइंट है बेटे, ध्यान से सुन लेना। नंबर 1, इंसिडेंस एंगल और ग्लांस एंगल दोनों का टोटल 90 डिग्री। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नंबर 3, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। इस सिंबल को जो 8 जैसा है, मैथ के डिजिट 8 के जैसा, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। फोर्थ पॉइंट, जितना डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी उतना हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ। मोर दी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्शन मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा हुआ, यानी हम कहेंगे उतनी ही ज्यादा रिफ्रैक्शन हुई। पांचवी बात, ध्यान से सुनना बेटे। टीचर ने अभी अभी बोला था रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम में वेलोसिटीज अलग अलग होती हैं। लाइट की वेलोसिटी रेयरर मीडियम में ज्यादा और लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में कम। इन दोनों, ये कम होती है, ये ज्यादा होती है, इन दोनों का डिफरेंस कर लो माइनस करके, तो इनका जो डिफरेंस आ गया वो आ गया ये चेंज इन वेलोसिटी। जितना चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा, जितना चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा दोनों मीडियम में, उतना डेल्टा भी ज्यादा होगा और उतना रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। गॉट इट? और ये जितने भी 6 पॉइंट हमें बताए, ये जिस साइंटिस्ट ने हमें बताए थे उसका नाम था स्नेल। तो ऑल दी पॉइंट्स आर टोल्ड बाय द साइंटिस्ट स्नेल। जो पॉइंट आपके लिए नया है नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, वट एवर इज न्यू फॉर यू। स्नेल साइंटिस्ट ने हमें इस रिफ्रैक्शन के बारे में ये सारे पॉइंट बताए। ये रिफ्रैक्शन की टाइप नंबर 1 है, कौन सी? रेयरर टू डेंसर। इसमें सबसे खास बात क्या बताई है टीचर ने? टीचर ने ये बताया है रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है। बहुत से बच्चे गलती से पेपर में ये लिख देते हैं कि रेयरर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी लो होती है। बिल्कुल गलत। तो नॉर्मल डेंसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। जो डेंसिटी का फार्मूला आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, उसका लाइट के चैप्टर में कोई लेना देना नहीं, नो लिंक एट ऑल। अब हम दूसरी टाइप की रिफ्रैक्शन भी पढ़ लेते हैं बेटे, वो भी सुनो। देखो बेटे ध्यान से सुनना, ये क्या हो गया हमारा? रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज। और ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम,
ओके। और नेचुरली डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी सभी बच्चों ने याद रखना है कंपैरेटिवली लेसर होएगी, और रेयरर में लाइट की वेलोसिटी कंपैरेटिवली मोर होएगी, ये तो पता ही है आपको। दूसरा, यहां पर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेंगे और यहां पर सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, लाइट थ्रो करेंगे। अगर आपको ये वाला सारा एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में करना है तो आप ये सोर्स ऑफ लाइट किसी भी कलर का ले सकते हो, लेकिन व्हाइट नहीं लेना। आपको सोर्स ऑफ लाइट प्रेफरेबली व्हाइट नहीं लेना, वरना आपके जो मेजरमेंट्स है उसमें एक्यूरेसी कम आएगी। अगर आप सोचते हो कि सबसे बढ़िया एक्यूरेसी है तो ये सोर्स ऑफ लाइट आपकी रेड कलर का होना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा फिर। अगर ये रेड कलर का हो तो सोर्स ऑफ लाइट से ये हमारी इंसिडेंट लाइट गई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और यहां पर टीचर ने व्हाइट कलर से जो लाइन बनाई है डॉटेड, दैट इज योर नॉर्मल। क्यों बोला नॉर्मल? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ? ये ग्रीन वाला। एंगल ऑफ ग्लांस कौन सा हुआ? ये येलो वाला। जब लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, याद रहे कौन सा बोल रहा है टीचर? डेंसर टू रेयरर, देन दिस रेड लाइट विल गेट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अपने ओरिजिनल रास्ते को छोड़कर, जिधर को जा रही थी स्ट्रेट लाइन में, उसको छोड़कर नॉर्मल से दूर हट जाएगी। दिस पर्टिकुलर इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। और जिस एंगल को टीचर इस वक्त स्काई ब्लू कलर से दिखा रहा है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सभी बच्चे देखो, ध्यान से देखना बेटे, अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में से डेल्टा एंगल को माइनस कर दूं, डेल्टा एंगल को माइनस कर दूं, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर फिर तो आपका इतना एंगल ही रह जाएगा। गौर से देखो, ये वाला एंगल ग्रीन वाला कौन सा है? ये ग्रीन वाला एंगल डेल्टा माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ना सॉरी उल्टा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ डेविएशन। देखो स्काई ब्लू कलर से रेड वाला कलर माइनस कर देंगे तो ग्रीन वाला एंगल आ जाएगा। इस एंगल को हम बोल देते हैं, मान लीजिए थीटा। अब ये गौर से देखो, ये ग्रीन एंगल और ये वाला ग्रीन एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट। इसका मतलब ये भी थीटा हुआ। क्यों? जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, व्हेन टू लाइन्स कट ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल जो नीचे हमने थीटा दिखाया है, पर ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसलिए इसको हम आई लिख सकते हैं। तो लर्निंग पॉइंट क्या सीखे हमने सेकंड टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन से? नंबर 1, ध्यान से सुनना, नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लांस इक्वल टू 90 डिग्री। ग्रीन एंगल प्लस येलो एंगल दोनों का टोटल 90 डिग्री। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेसर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हमने पिछली वाली टाइप पढ़ी थी वहां मैंने ग्रेटर लिखा था। नंबर 3, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ डेविएशन। जब दूसरी वाली हमने टाइप पढ़ी थी तो यहां पर प्लस करा था, प्लस। नंबर 4, जितना डेल्टा ज्यादा होगा उतना रिफ्रैक्शन भी ज्यादा माना जाएगा, उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा। नंबर 5 लर्निंग पॉइंट सुनो बेटे। 5 लर्निंग पॉइंट ये कह रहा है कि दोनों मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस, लाइट की वेलोसिटी रेयर मीडियम में, लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में, ये ज्यादा होती है ये कम होती है, इनका डिफरेंस आ गया डेल्टा वी। जितना लाइट की वेलोसिटी का ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही डेल्टा भी ज्यादा होगा, उतना ही रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा।
ये था लर्निंग पॉइंट 5। लर्निंग पॉइंट 6, लर्निंग पॉइंट 6 ये है। अब ये रिफ्रैक्शन होती क्यों है? ये रिफ्रैक्शन, चाहे ये वाली चाहे पीछे वाली, रिफ्रैक्शन का वाई क्या है? वाई। तो इस वाई में आपने दो कारण लिखने हैं, टू रीजंस। टू रीजंस। कोई बच्चा बता सकता है दोनों रीजन क्या है रिफ्लेक्शन के? एनीबॉडी जो दोनों रीजन बता सके पूरे स्कूल में? अगर एक क्लास में मैं 50 स्टूडेंट्स लगाऊं तो दिस क्वेश्चन इज फॉर 150 स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्शन के होने के टू रीजन होते हैं, दोनों रीजन कौन बच्चा बता सकता? नहीं बता रहे? लेट मी टेल यू। अगर आपसे रिफ्रैक्शन का वाई पूछ ले तो आपने पेपर में लिखना है दो रीजन। पहला, वेलोसिटी ऑफ लाइट is different in different medium। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो velocity of light in rarer medium is not equal to velocity of light in denser medium। लाइट की एक तो आप ये रीजन बताओगे। दूसरा आप बताओगे योर अटेंशन, जब भी रे ऑफ लाइट जाती है, whenever it travels in any medium, तो ये रे ऑफ लाइट हमेशा उस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है जिसमें उसको मिनिमम रुकावट का सामना करना पड़े, मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन का। तो याद रखना, रे ऑफ लाइट ब्रैकेट में स्ट्रेट लाइन मोशन तो है ही है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑलवेज, देखो टीचर ऑलवेज लिख रहा है, ऑलवेज follows the path of minimum obstruction। ये दो कारण पाए गए रिफ्रैक्शन के होने के। अब कोई बच्चा मेरे से पूछे सर ये दो कारण आपने बता तो दिए, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये दोनों चीजें डेल्टा कैसे क्रिएट कर देती हैं? ये दोनों चीजें क्या आप उस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो बोर्ड पर? तब मैं कहूंगा बेटे दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर क्लास। बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर क्लास, वो मैं अभी नहीं बता सकता, उसके लिए मैथमेटिकली जाना पड़ता है और वो +2 में पढ़ाते हैं कि कैसे ये दोनों रीजन मिलके डेल्टा क्रिएट कर देते हैं, यानी रिफ्रैक्शन। लेकिन आपको इन दोनों रीजन का नाम याद होना चाहिए, ये लैंग्वेज याद होनी चाहिए। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। गुड जॉब, गुड जॉब। आ जाओ बेटे फटाफट से, अब आओ असाइनमेंट। असाइनमेंट फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जल्दी बताओ। क्वेश्चन 1 का कौन सा A ऑप्शन? option। वेरी गुड, 8th बी जीत गया, 8th बी जीत गया क्वेश्चन नंबर 1 में। उसने बोला सर ए ऑप्शन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी क्लास जीत? C option। C option। Fraction. Light passes from air to glass, it bends toward due to Diffraction। रिफ्रैक्शन। फिर से 8th बी जीत गया, शाबाश। फिर से 8th बी। थर्ड क्वेश्चन, C option। D। डी ऑप्शन D option. Okay, let me see. When a ray of light propagating one medium enters into another transparent medium, it gains speed, loses speed, neither gains nor loses. The speed depends upon the optical density of the medium। बिल्कुल सही, थर्ड का डी ऑप्शन। सबसे पहले इसमें जवाब दिया था मेरा ख्याल 8th सी ने, 8th सी विनर हुआ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4, A option। A option। नंबर 4, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ए ऑप्शन। इसके अंदर तीनों क्लासों ने बराबर का जवाब दिया, तीनों ही विनर कहे जाएंगे। क्वेश्चन 5,
B option. वेरी गुड, बी ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन 5 में. लेट मी सी, बी सेक्शन ने बताया, फिर भी मैं देख लूं. व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. होना चाहिए फिफ्थ का बी ऑप्शन. एट्थ बी विनर हुआ. ये बी सेक्शन को यार आप बीट नहीं कर पा रहे, क्या बात है. क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 में क्या आंसर है? B option. B option. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम? B option. ओके, मैं बताता हूं अभी कौन सी सही बताती है. पानी से हवा में, पहले वाला तो गलत हो गया. दूसरे वाला एयर से ग्लास में, इसमें भी इसने अवे कर दिया, गलत. सेकंड गलत. थर्ड ग्लास से पानी में, गलत. डी ऑप्शन ग्लास से एयर में, गलत. पानी से ग्लास में. ई ऑप्शन इज करेक्ट, ई ऑप्शन. और मैं बताना चाहूंगा इसमें सबसे पहले ए सेक्शन ने जवाब दिया. वेरी गुड. क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 बेटे. When ray of light enters from glass slab perpendicular to its surface, C option. it reflects off the surface, it bends away from the normal continuous straight line. ये गड़बड़ कर दिया आपने बच्चे. जब भी रिफ्रैक्टिंग एज के ऊपर रे ऑफ लाइट आती है परपेंडिकुलरली, तो सभी बच्चों ने याद रखना है उसकी रिफ्रैक्शन होती नहीं है, वो एज इट इज स्ट्रेट लाइन में चले जाती है. नो रिफ्रैक्शन अकर्स. अगर वो परपेंडिकुलरली हिट करे, इट कंटिन्यूज इन द सेम स्ट्रेट लाइन. ए ऑप्शन. 7th क्वेश्चन का आंसर कोई भी स्टूडेंट नहीं बता सका. क्वेश्चन नंबर 8 में जल्दी बताओ. A option. A. C. क्वेश्चन 8. A option. A. Passes from X to Y. No refraction of the light occurs if the ray of light hits the boundary at an angle. बिल्कुल सही, ए ऑप्शन. और इस बार 8th सी ने सबसे पहले जवाब दिया. बाकियों का भी सही था लेकिन सबसे पहले 8th सी ने. क्वेश्चन नंबर 9 बेटे. C option. C option. C option. When you put a pencil in the glass, it appears bent at the water surface due to Refraction. Reflection. रिफ्रैक्शन. सी ऑप्शन, सी ऑप्शन. सबसे पहले 8th बी सेक्शन ने. शाबाश, 8th बी. क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं कौन सबसे पहले. C option. C option. C. C. Why does a fish in the pond appear closer to the surface than it is actually? C. एक कंटेनर में अगर हम एक्वेरियम में मछली छोड़ दें तो जितनी डीप में एक्चुअल मछली होती है उससे कम डेप्थ पे दिखती है. इसका रीजन भी रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन. दैट इज वाई 10th का सी ऑप्शन. फिर से बी सेक्शन को आंसर मार्क्स मिले. ओके. क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी बताओ. क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 कौन बताएगा सबसे पहले? A option. लेट मी सी. क्वेश्चन 11 में है क्या? फिगर दिखा रखा है. तो आपको सारे एंगल मेंशन करने हैं बेटे. ये तो आपको मैं ही बता देता हूँ सर. सुनो, ये ग्लास स्लैब है. रे ऑफ लाइट ऐसे आई, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एज के साथ जो एंगल बनता है एंगल ऑफ ग्लास. ओके. लाइट ऐसे चलेगी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. जिधर को जा रही थी अगर उसी डायरेक्शन को डॉटेड एक्सटेंड कर दें तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. अब लाइट यहां पर टकराती है तो अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है. सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन होगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर चले जाएगी. यहां पर जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं. इमरजेंस, क्योंकि बाहर निकली हुई लाइट को बोलते हैं इमरजेंट रे. और मैं बताना चाहूंगा ये डॉटेड लाइन और ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, और दोनों पैरेलल लाइन में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाया है टीचर ने येलो कलर से, इसको अगर मैं डी से लिख दूं तो डी का नाम याद रखना सभी बच्चों ने, लेटरल शिफ्ट. ओके.
तो हमारे पास